जैसे कि भजन संहिता 103 अध्याय में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। ये वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। मेरा नाम पिरतपाल, पिंड तलवंडी, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ। ਜਦ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਘਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਲੈ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਦਾਰੂ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਸ਼ਾ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਘਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਮਲੇ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕੁਛ ਨਸ਼ਾ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ 600-700 ਦਾ ਮੈਂ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 21-22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਚੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭੱਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਂਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਚਰਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਚਰਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਨ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਊਂਗਾ। 22 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਖਾਸ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ मैं भी अपने लिए रिसीव किया। जिंदगी में विचार से आजाद हो जाओ। आमीन। नशे की दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ। आमीन। विचार की दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाओ। आमीन। आजाद हो जाओ मेरे आमीन। उस प्रार्थना तो बाद पूरी तरह मैं नशियां तो आजाद हाँ। हुण मैं कोई नशा नहीं करता। हुण मैं ना दारू का, ना चिट्टे का, ना सिगरेट का कोई नशा नहीं करता। हुण मैं पूरी तरह नशियां तो आजाद हाँ। हुण मैं साडे घरे भी सारे सुखी आ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ। इस बड़े छुटकारे लिए प्रभु का मैं धन्नवाद करता हाँ, और प्रभु के दास का धन्नवाद करता हाँ, और सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी।
जैसे कि बाइबल में लिखा है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के न्याय उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। और परमेश्वर के इसी सामर्थ्य वचन ने इनके जीवन में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है और मैं फिरोजपुर के रहने वाली हूँ और आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2020 में मेरी तबीयत खराब रहने लगी और मेरे को ये खांसी और जुकाम पहले मेरे को रहता था। मैं पास के डॉक्टर से कितने दिन तक मैं दवाई खाती रही, तो फिर भी मुझे आराम नहीं पड़ा खांसी और जुकाम में। धीरे धीरे मैं और भी ज़्यादा बीमार रहने लगी और भी ज़्यादा मेरे को तकलीफ़ रहने लगी। सांस लेने में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। तो फिर कई जनों ने मेरे को बोला कि वहाँ से दवाई ले लो, वहाँ से डॉक्टर दिखा लो, चेक करा लो। मैं सारी जगह से चेक भी कराती रही और दवाइयाँ भी लेके आती रही, पर लेकिन मेरे को दवाइयों से बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ा। फिर किसी ने मेरे को बोला कि फरीदकोट जाओ मेडिकल में, वहाँ पर अपना सारा टेस्ट करा के वहाँ पर डॉक्टर को दिखाओ। जब मैं वहाँ पर सारा टेस्ट कराया तो फिर डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपको अस्थमा है और आपके फेफड़े सिकुड़ चुके हैं और आपका जो खून है वो 5 ग्राम रह गया है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको सारी उम्र ये पंप और ये दवाई लेनी पड़ेगी, इसके बिना नहीं आप रह सकोगे। अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से मैं चल फिर भी नहीं पाती थी। घर का काम मेरा झाड़ू पोछे के काम थे, मैं सब कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरी बेटी आएंगी वो करती थी घर का काम। ना ही मैं पौड़ी चढ़ पाती थी, ना ही मैं दौड़ पाती थी। जब अस्थमा मेरे को होता था तो मेरे छाती एकदम जाम हो जाया करती थी, मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत आती थी। तो फिर मैं दिन में 3-4 बारी मैं पंप भी लिया करती थी और गोलियां भी खाती थी। उसके बाद में जब नहीं फ़र्क पड़ता था तो मैं टीका भी लगवाती थी। यहाँ तक कि मैं अपने कहीं पर भी जाऊँ, रिश्तेदार में भी कहीं जाऊँ या बाहर में कहीं जाऊँ, मैं अपनी दवाई अपनी मेडिसिन साथ में लेके जाती थी। मैं इस बीमारी की वजह से मैंने 10-12 डॉक्टर भी बदली करे, पर लेकिन मुझे कहीं से भी आराम नहीं पड़ा। जब सर्दी आती थी तो मेरे को और भी ज़्यादा, सर्दियों में और भी ज़्यादा खांसी और सांस, छाती जाम हो जाना और भी ज़्यादा रहने लग गया। मेरे को सब कुछ मेरा धीरे धीरे और भी बंद हो गया। यहाँ तक कि जो ये पटाखे और ये जो कनक वगैरह कटती है, इसकी धूल, ये मेरे को सर्दी में खास करके और भी ज़्यादा इससे मेरे को दिक्कत आती थी। मन में मेरे ये आता था कि ये इतनी बड़ी बीमारी है, नाले मैं कैसे ठीक होंगी और कि मेरी सारी उम्र ये दवाई मेरे साथ ही चलती रहेगी। कई बारी मेरे को रात को भी ये अस्थमा मेरे को रात को भी होता था, दिक्कतें आती थी रात को भी। मैं सो नहीं पाती थी, बैठी रहती थी मैं उठ के, क्योंकि मैं जब भी लेटूं तो वो और ज़्यादा हुआ करता था। बच्चे देखा करते थे कि मम्मी को ना तो उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, क्योंकि सारी सारी रात एक लड़की जो मेरे बीच की लड़की है वो मेरे साथ ही बैठी रहती थी, वो मेरे साथ निकाला करती थी वो। डॉक्टर ने तो मेरे को बोला था कि सारी उम्र आपको ये दवाइयाँ खानी पड़ेगी और ये रोग मतलब ये ठीक नहीं हो पाएगा और दवाइयाँ और ये पंप तुम्हें लेना ही पड़ेगा, इसी के सारे मतलब ज़िंदगी निकालनी है। तो एक तरफ मैं बच्चों को भी देखा करती थी कि बच्चे कल को मेरी बच्चों की शादी हो जाएगी, बच्चे चले जाएंगे, आगे का जीवन मैं कैसे निकालूंगी। तो लेकिन मैं यहाँ पर 2017 से खामड़ी चर्च से मैं जुड़ी। मैं लगातार खामड़ी चर्च की गवाहियाँ सुनती थी, बड़े से बड़ी लोग कैसे कैंसर की बीमारियों से, दमे के रोगी से और भी बड़ी बड़ी बीमारियों से कैसे आज़ाद हो रहे हैं। तो एक मेरे मन में विश्वास था कि जब ये लोग ठीक हो सकते हैं तो परमेश्वर कहीं ना कहीं मुझे भी छुएगा और इस बीमारी से मुझे भी आज़ाद करेगा। मेरा फेद था, परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। फिर मैंने खामड़ी चर्च में ऑनलाइन फार्म फिल करवाया ले हैंड का। 29 सितंबर को 2022 में जब मैं खामड़ी चर्च में आई तो प्रभु के दास ने जब मेरे पर ले हैंड किया,
परमेश्वर के दास ने जब मेरे ऊपर ले हैंड किया तो उसी टाइम में पवित्र आत्मा से भरी और एकदम गर्माहट से भर गई और मैं पीछे को बैक साइड में पीछे गिर गई। उस दिन ले हैंड की प्रार्थना के बाद जब मैं घर पे जब मैं गई तो जो मैं प्रतिदिन जो दवाई खाती थी तो मैंने उस दिन के बाद दवाई नहीं खाई और जो मैं पंप लेती थी मैंने नहीं लिया। अस्थमे के रोग से जो मेरा ब्लड 5 ग्राम हो गया था तो अब मेरा ब्लड 10 ग्राम हैगा। ना मुझे धूल मिट्टी से तकलीफ़ है, ना मुझे सांस लेने में कोई दिक्कत है। अब मुझे घर का काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं घर का सारा काम करती हूँ और पौड़ियों पे भी चढ़ती हूँ उतरती हूँ। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अस्थमा के रोग से जो मेरे फेफड़े सिकुड़ चुके थे अब वो परमेश्वर ने उसे नए कर दिए हैं। इस बात से डॉक्टर भी हैरान है कि ये तुम्हारे फेफड़े कैसे नए हो चुके। उस दिन की ले हैंड की प्रार्थना से मैं अस्थमा के रोग से पूरी तरह आज़ाद हूँ। जो लोग बीमार हैं, जो परेशानी में हैं कि हमारी बीमारियां कैसे ठीक होएंगी, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पे था कि परमेश्वर जब तो इनकी ज़िंदगी में गवाही दे सकता है तो मेरी ज़िंदगी में भी गवाही खड़ी करेगा। जैसे मुझे आज़ाद किया ऐसी परमेश्वर आपको भी आज़ाद करेगा। आपका फेद परमेश्वर के ऊपर रहे जैसे मेरा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर था। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास और दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की।